Okay, so very good morning in today's class of chemistry. In today's lecture, we are going to learn about the type of bonds that we already learned into the last lecture, but just revise. Covalent bond is formed by the sharing of electron. Okay, there is two type of sharing of electron, that is axial overlapping of atomic orbital and sharing of electron is occur. So it forms the sigma covalent bond. And if there is a lateral overlapping of the atomic orbital and sharing of electron is there, so it forms the pi bond. And as we know that this pi bond is weaker as compared to sigma bond because it is a lateral overlapping, sideways overlapping. Okay, ionic bond is formed by the ionic interaction is there. There is a force of attraction, electrostatic force of attraction in between two different type of ion. So it formed the ionic bond. Then coordinate bond is there because we know that every bond having a 2 electron, it may be come from the two atom, okay, that involved in the bond, but in some bond the 2 electron come from the one atom. ठीक आहे. बॉन्ड बनत असताना दोन ॲटम जेव्हा एकमेकांना इलेक्ट्रॉन शेअरिंग करतात तेव्हा बॉन्ड बनतो, हे आपण बघितलं. बट कोव्हॅलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड. बट जेव्हा एखादा ॲटम हा 2 इलेक्ट्रॉन इन्व्हॉल्व करतो बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये आणि दुसरा ॲटम एकही इलेक्ट्रॉन इन्व्हॉल्व करत नाही, अशा वेळेस जे बॉन्डिंग तिथं आपल्याला पाहायला मिळतं त्यावेळेस त्याला कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ बॉन्ड आपण म्हणत असतो. आणि स्पेशली जेव्हा आपण कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड पाहणार फायनल इयरला तुम्ही आल्यानंतर, त्या सगळ्या कंपाऊंड मध्ये कोऑर्डिनेट टाइपचा बॉन्ड आपल्याला पाहायला मिळतो जो की एम आणि एल मध्ये बॉन्ड असतो. ठीक आहे. एम म्हणजे एक मेटल आयन असतं आणि एल हे जे असतात ते लिगॅंड्स असतात. लिगॅंड म्हणजे तर एखादा आयन असू शकतो, ज्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज असेल किंवा एखादा न्यूट्रल मॉलिक्यूल असू शकतो की ज्याच्यावरती लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतो. एक्झाम्पल मध्ये आपण अमोनिया सुद्धा घेऊ शकतो. ठीक आहे. मेटॅलिक बॉन्ड इज बिटवीन टू मेटल्स. ओके, so this is called as a metallic bond. And one another bond is very famous, we know everyone, that is the friendship bond, that all depend on you. Okay, then types of steps in reaction mechanism. As I told you in the previous lecture, reaction is occurring to the different step that depend upon the product and structure of the reactant. Okay, so reaction occur in a stepwise manner. Okay, so it may be in one step or it may be in a different step. Okay, so the stepwise reaction is known as the mechanism of the reaction. Okay, so this mechanism represent the stepwise changes occur in reaction. Okay, so reaction is converted into the product. So this is the reaction mechanism, and in this reaction mechanism in a different step we observe in every step there is a new bond are formed, some bond are break. Okay, so bonding, breaking and making, this process is continuously in every step. So you can say these are the reactions. But there are bond breaking, it is occur or it is found in two type. Okay, दो टाइप में इसके बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है. देयर आर सिमेट्रिकल, these are symmetrical bond breaking or asymmetrical bond breaking. ठीक है. सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग यानी कि होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग. asymmetrical bond breaking means it's known as heterolytic bond breaking. Okay, so symmetrical or homolytic means there are same type of atom in the molecule and that molecule is break down this bond and equally distributed the electron after the bond breaking. Okay, so we see here there are some example is there. Symmetrical bond breaking, that is the radical formation. This is the third intermediate we are going to be learned through under this title as a step in the reaction mechanism. So two type of bond breaking is there. One is homolytic bond breaking, second is a heterolytic bond breaking. That homolytic bond breaking is depend upon, or it word come from the homo means same. Okay, so same type of atom is there, that is the AA type of atom. For example, is a for a understanding we consider the AA type of atom. So this atom form a bond with this atom, both are the same. Okay, both are the same. That means their atomic number are same, their electronegativity is same, and their different properties are too
be same. So that's why they are called as homodiatomic molecule. This is the homodiatomic molecule. Homo means same. So there is a same type of atom in a bond, and this bond is breakdown. That means lytic. Okay, this is breaking of bond. So there is a homolytic bond breaking is occur in a homodiatomic molecule. So due to the breaking of bond, we found or we get two species is there. That is 1A and this is the second A. So we know that there are two electrons involved in every bond. So after the breaking of bond, this one electron come with this A and one electron come with this A. Okay, so due to this bond breaking, we obtain these two species. They're having an odd electron, they're having a single electron. So this species is known as to be radical. This is the radical. Okay, so this is the homolytic bond fusion is there, or homolytic bond breaking is there, or also called as symmetrical bond breaking is there. Then there is equally distribution of electron after the breaking a bond. Then this is the example. This is the A and B. Okay, this is the bond. There's two electron involved in this bond. After the breaking of this bond, one electron goes with A and one electron goes with B. So we can see here there is A radical and B radical is obtained. So this is the one bonding electrons there stay with each product. You know, these are the products. Okay, so along with this product, they're having one single electron after the breaking of this bond. So this is called as a symmetrical breaking of bond. Okay, then another is the asymmetrical bond breaking, that is called as a this happen in a polar molecule. This happen in a polar molecule. Polar molecule means the molecule having a two different pole. So the different pole in the molecule, this because of different electronegativity. Okay, so two different electronegativity atom, two different type of atom is there. Means one is A and another is a B. It just for the example, this is the A और ये जो है ये B है, और A और B के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और इस बॉन्ड का अगर ब्रेकिंग होता है, फ्यूजन होता है, तो इस बॉन्ड के ब्रेकिंग के फ्यूजन को हम कहेंगे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग. ठीक है ना. तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो A है ये अलग टाइप का एटम है, B अलग टाइप का एटम है. दो अलग अलग एटम होने की वजह से उसका एटॉमिक नंबर अलग होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, उसकी पूरी जो भी प्रॉपर्टीज है दोनों की और बी की, ये सारी अलग अलग होगी. एटॉमिक साइज होगी, एटॉमिक रेडियस होगी, या और प्रॉपर्टी जो भी होगी, उसका आयनाइजेशन प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है. तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है ए और बी की डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे हम देखेंगे कि एक जो एटम है, समझो कि बी एटम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ए. तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये एक्चुअली जब दोनों एक जैसे ही एटम होते हैं तो ये सेंटर में हमें देखने को मिलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ओके, बट जब डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जब एटम होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसके न्यूक्लियाई के करीब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमें देखने को मिलता है इस मॉलिक्यूल में कि बी जो यहाँ पे एटम है, बी साइड जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रही है हमें. तो ये जो है ये न्यूक्लियोफिलिक, मतलब इसे कहेंगे हम एक इलेक्ट्रॉन डेंसर रीजन वहां पे एक फॉर्म होते हुए हमें दिखता है. तो दिस इज द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसर रीजन. इसे ही हम क्या कहते हैं, डेल नेगेटिव चार्ज इस पार्ट को दे देते हैं. So obviously on the second side there is a deficiency or lack of electron we can see there, so that indicated by the del positive charge. Okay, so we can see in this molecule there are two different poles is there. This is the del positive pole and this is the del negative pole. So that means there are two different poles in the molecule. So such a type of molecule is known as to be the polar molecule. Okay, so this polar molecule is simply known as to be heterodiatomic molecule. ये पोलर मॉलिक्यूल जो होता है ये हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल होता है. हेटेरो यानी कि डिफरेंट टाइप के एटम मॉलिक्यूल में होना. तो डिफरेंट टाइप के एटम जब रहते हैं उसे हम हेटेरो कहते हैं. और यहाँ पे अगर बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, दे drift this electron, pull this electron toward itself after the breaking a bond, and it develop the negative charge on itself.
ठीक है। तो ए बी जो बॉन्ड है, इस ए बी बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन बी के करीब है, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये बी जो है जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला एग्जांपल कि ये और बी के बीच में जो शेयरिंग हुई थी दो इलेक्ट्रॉन की, तो बी जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये खुद की इधर खींच लेता है। तो इस वजह से जो बी बनेगा यहाँ पे, तो बी पे डेल निगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो ये जो है कंडीशन, तो इसे हम कहेंगे असिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन भी कहेंगे, असिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग कहेंगे, और इसे हम हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या फ्यूजन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। और दूसरी चीज इसमें हम देखेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होता है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में जो भी स्टेप्स होती है, इसमें क्या होता है, हमेशा कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो कुछ बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो हमने यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग देखा है, जिसे हम फ्यूजन भी कहते हैं, बॉन्ड फ्यूजन। ये बॉन्ड फ्यूजन भी होता है, जैसे कि सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन, असिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन, इसे ही हम होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। द नेक्स्ट जो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बॉन्ड फॉर्म कर से होगा वहां पे, देखो जब बॉन्ड कब बनता है, इफ एटम दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दे कंप्लीट। So in a bond formation we can see there are radical, when this two radical, दो रेडिकल जब कांटेक्ट में आते हैं, ये रेडिकल और बी रेडिकल, तो क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। ओके, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि एक एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यहाँ पे देर इज अ दो इलेक्ट्रॉन, यू कैन सी हियर देर आर टू इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। सो ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ दिस बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इज फॉर्म। ओके, सो ये जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह से हो सकता है। Then another, this is the radical species is there, and radical they give their electron to each other and form the molecule, form the molecule, molecule बनना यानी कि बॉन्ड वहां पे बनना। ठीक है। तो ये जो है ये रेडिकल होते हैं, और हमने देखा है कि ऑल इंटरमीडिएट स्पीशीज आर हाईली अनस्टेबल, whether it is positive, negative or radical, they all are highly unstable। ठीक है। तो due to the highly instability they are more reactive, दे आर मोर रिएक्टिव। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये रिएक्शन बहुत जल्दी शो क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट रिएक्शन में कर देते हैं। ठीक है। तो जब भी दो रेडिकल वहां पे आएंगे तो वहां पे एक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो इसी वजह से ये जो दो रेडिकल है, ए रेडिकल और बी रेडिकल, इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया, और ये भी मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे बनते हुए दिखाई देता है। ये जो है यहाँ पे सेम टाइप के रेडिकल है ना, तो इसे सिमेट्रिकल बॉन्ड मेकिंग हम प्रोसेस कहेंगे, सिमेट्रिकल बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस। देन वन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ईच रिएक्टेंट, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों रिएक्टेंट ने यहाँ पे इन्वॉल्व किए, एंड इट फॉर्म द ए बी बॉन्ड। ओके, देन अनदर इज असिमेट्रिकल बॉन्ड मेकिंग, मतलब असिमेट्रिकल बॉन्ड मेकिंग होती है, असिमेट्रिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। असिमेट्रिकल बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो इन्वॉल्वमेंट होती है बॉन्ड फॉर्म करते टाइम, हमें पता है कि बॉन्ड जब बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, भले ही वो इलेक्ट्रॉन दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करे, या ये अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों भी एटम इन्वॉल्व करते हैं तो उसे हम सिमेट्रिकल बॉन्ड मेकिंग कहेंगे, सिमेट्रिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है। बट जब दो एटम, दो स्पेसीज होती है जो कि एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, जो कि पॉजिटिव चार्ज कहेंगे हम, और दूसरा जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कहेंगे हम। ठीक है। तो ये दो जो स्पेसीज है जब इंटरैक्ट होगी और वहां पे बॉन्ड फॉर्म होगा, है कि नहीं। तो बॉन्ड फॉर्म जब होता है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दिस ए पॉजिटिव इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, इसे हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, एसिडिक स्पेसीज भी कहते हैं। और ये जो सेकंड होता है बी निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है।
है ना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, इस तरह से हम उसको कहेंगे, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। तो ये जो है ये इस एक के साथ में रिएक्ट होगा, और इस रिएक्शन होते टाइम में जब बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, तो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, वो दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक बी एटम दे देगा, ठीक है ना। तो ये बी एक खुद दो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ पे भी हमें बॉन्ड बनते हुए दिखाई देता है। बट ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस बी एटम ने दिए हैं, है ना। ए का कोई इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, एक ने इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं दिया, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हेटेरो टाइप का इलेक्ट्रॉनिक वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, है कि नहीं। तो ये जो है इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन को कहेंगे हम असिमेट्रिकल बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस या असिमेट्रिकल बॉन्ड। ओके, इस तरह से टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर डोनेट बाय वन रिएक्टेंट, है ना। एक ही रिएक्टेंट दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देन इंडिकेटिंग स्टेप्स इन मैकेनिज्म। तो हमने देखा है ज्यादातर जब भी आप रिएक्शन देखते हो तो उसमें अलग अलग टाइप के एरो आपको देखने को मिलते हैं। एक ऐसा एरो होता है जो कि सिंगल हेडेड एरो होता है, इस तरह सिंगल हेडेड एरो, है ना। तो सिंगल हेडेड एरो को ये क्या इंडिकेट करता है, एरो जो कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जो होती है इलेक्ट्रॉन की, उसे इंडिकेट करते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे एक इंडिकेशन होता है कि एरो को अगर एक ही हेड है, यहाँ पे एक ही हेड वहां पे हमें देखने को मिलता है, तो इसका मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का वहां पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम कहेंगे, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से ये सोर्स पॉइंट है, इस सोर्स पॉइंट से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे गया, ठीक है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे शो करेगा। अगर यहाँ पे डबल हेडेड एरो है, इस तरह का एरो अगर होता है, तो ये एरो इंडिकेट करता है कि वहां पे दो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज वहां पे जो है ये मूव हुआ फ्रॉम ए सेंटर टू बी सेंटर, ठीक है। तो इस तरह के एरो हमें देखने को मिलता है। और भी एरो होते हैं जो कि ये इस तरह से, यहाँ पे रिएक्टेंट होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, तो ये रिएक्शन शो करने के लिए होती है। और ये फॉरवर्ड टाइप की रिएक्शन शो करता है, फॉरवर्ड मतलब ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, यहाँ से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ओके, और दूसरा जो है और एक एरो हम देखते हैं कि इसमें इस तरह से एरो इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये दो टू साइड हेड, है ना। टू साइड का हेड अगर होता है एरो को, तो वो इंडिकेट करता है कि ये ए और ये बी, ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, एक जैसे ही है ये दोनों। या ये इसे एक और भी कहते हैं कि जो रिएक्शन रिवर्स भी होती है ना, मतलब इसका कन्वर्जन ऐसे होगा और बाद में इस वक्त इसका कन्वर्जन ऐसे भी होता है। इसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से भी करते हैं, इस तरह से, मतलब ये रिएक्टेंट जा रहा है ए टू बी, और ये नीचे का एरो इंडिकेट करता है फ्रॉम बी टू ए। तो ये जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन वहां पे हमें शो करता है, ठीक है। ये एक ऐसा एरो हम यूज करते हैं रिएक्शन में, एज अ बाय प्रोडक्ट के साइड में हम यहाँ पे लिख देते हैं, या प्रोडक्ट के साइड में लिख देते हैं। जब ये ऐसा डाउनवर्ड साइड का एरो हमें देखने को मिलेगा, उस टाइम में हम कहेंगे कि वहां पे प्रेसिपिटेशन बन रहा है, ठीक है। और अप साइड का एरो अगर हमें देखने को मिलता है, तो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल या गैस मॉलिक्यूल जो है इसमें से रिलीज हो रहा है, ठीक है, इलिमिनेट हो रहा है, इस तरह से। तो ये अलग अलग टाइप के एरो हमें रिएक्शन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये पूरे यहाँ पे हमने एरो देखे हैं, रिएक्शन एरो है, ठीक है। ये डबल हेडेड वाला इक्विलिब्रियम एरो है, ये डबल हेडेड एरो यहाँ पे हमने देखा है, दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाँ, या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को भी इंडिकेट, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर और बी एक स्ट्रक्चर, ये दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। मतलब कुछ टाइम के बाद जिसमें जो बॉन्डिंग है इसका डीलोकलाइजेशन होगा, और फिर से एक जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे ये दो मॉलिक्यूल, मतलब आइडेंटिकल टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, तो इसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डबल हेडेड एरो हम यूज करते हैं। फुल्ली हेडेड एरो जो है, फुल्ली हेडेड मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन का वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज उसका डिस्प्लेसमेंट ये शो करता है। उसके बाद सिंगल या हाफ हेडेड एरो कहेंगे हम उसको। तो ये जो है ये फिश हुक भी कहते हैं उसको, फिश हुक एरो।
तो ये इंडिकेट करता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन को वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यूजिंग कर्व एरो इन पोलर रिएक्शन मैकेनिज्म, किस तरह से ये इसका यूटिलाइजेशन होता है। देखो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे कि ये जो देखो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे निगेटिव कार्बन है ना, दैट इज कार्बन आयन। तो ये सब जो है इलेक्ट्रॉन है वहां पे, है ना। यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम, और यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है, ये हम देखेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को, है ना। तो ये ई जो दिख रहा है, ये ई क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बेरिंग सेंटर होता है ना, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव होंगे, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उस सेंटर से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। ठीक है, तो इसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डबल हेडेड एरो को यहाँ पे यूज किया जाता है, जो इस इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ऑक्सीजन से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को दिए जा रहे हैं, या नाइट्रोजन से इस इलेक्ट्रोफाइल को दिए जा रहे हैं, या इस कार्बन निगेटिव मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वो भी होते हैं, तो इसको इस इलेक्ट्रोफाइल को दिए जा रहा है। इसका मतलब दैट डबल हेडेड एरो इंडिकेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। रूल फॉर यूजिंग कर्व एरो, अब इसका रूल क्या है, देखो रूल हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच, और दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, डेफिशिएंट। तो हमेशा याद रखना कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो किसी को कुछ दे नहीं सकता, और जिसके पास कुछ देने के लिए है, उसके पास कुछ ज्यादा है, तो वो उसको शेयर कर सकता है किसी और के साथ जिसको उसकी जरूरत है या जिसके पास वो नहीं है उसको, है ना। तो फॉर दैट दिस इज द सिंपल कंसेप्ट टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियोफाइल टू द इलेक्ट्रोफाइल। इन द language of chemistry, donate the electron by the nucleophile to the electrophile, because nucleophile is the electron rich species, there is a more electron density on the nucleophilic center or basic center, okay, and electrophile is a electron deficient center, it required electron vacancy is there, so that's why this electron always move from nucleophilic center or electron denser region to electron deficient region। ओके तो ये तो रूल हमेशा याद ही रखना। और जब हम एरो दिखाते हैं तो एरो में कभी गड़बड़ मत करना, जब आप रिएक्शन को लिखेंगे तब हमेशा याद रखना कि निगेटिव सेंटर से पॉजिटिव सेंटर की तरफ ही एरो को हमें मूव करना है, भले ही वो वहां पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या डबल इलेक्ट्रॉन। ऑलवेज राइट द एरो डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव सेंटर टू पॉजिटिव सेंटर। ओके तो ये हमेशा याद रखना। और यहाँ पे देखिए ये जो हमें यहाँ पे मिथॉक्साइड ग्रुप दिख रहा है ना, मिथॉक्साइड, तो मिथॉक्साइड में यहाँ पे जो है निगेटिव है, मतलब ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रॉन रीजन, है ना, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल इस आयोनिक स्पेसीज में। तो यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है HBr, तो HBr में हम देखेंगे तो Br जो है इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर, so that's why it drip the electron, it pulls the electron from this HBr bond toward itself, है ना। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा झुके हुए रहेंगे, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज होगा इस मॉलिक्यूल में HBr में, है ना, जैसे डेल नेगेटिव चार्ज। तो इस हाइड्रोजन पे जो है डेल पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये जो है हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है इस ब्रोमीन की तरफ, क्योंकि ब्रोमीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस वजह से ये जो यहाँ का निगेटिव पार्ट है इस आयोनिक स्पेसीज का, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस हाइड्रोजन की तरफ यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटर है इसमें और ये ब्रोमीन साइड जो है निगेटिव सेंटर है। तो इस हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा मिथॉक्साइड
और यहाँ पे मिथेनॉल मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और बाद में साइड में हम देखेंगे कि ये जो HBr के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन साइड में लेके एज अ ब्रोमाइड करके बाय प्रोडक्ट वहां पे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलती है और एरो को हम कर्व एरो को इस तरह से यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। जिस तरह से हमने न्यूक्लियोफाइल को स्टडी किया था, इन न्यूक्लियोफाइल वी कैन define to a nucleophilic molecule as if there is a negative charge, if there is a lone pair of electron for donation, and if there is a pi bonded system electron is there for available for the donation. तो इस तरह का अगर कंडीशन होती है, इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, सो सच अ टाइप ऑफ स्पेसीज इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था देने के लिए, तो ये न्यूक्लियोफिलिक स्पेसीज ने इलेक्ट्रॉन दे दे इस प्रोटॉन को। उसी तरह से ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि ये अल्कीन मॉलिक्यूल है और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि वीकली बॉन्डेड होते हैं, तो ये वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो सकते हैं HBr की तरफ या मोर एसिडिक मॉलिक्यूल की तरफ। ठीक है, और H को ही ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये आपको पता है, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ब्रोमीन। ओके, and because of that bromine pull the electron toward itself from this HBr bond, and that's why del negative charge create on this Br side and del positive charge create on the H side. Okay, so this pi bonded electron give to this hydrogen and Br is depart as a Br negative. So you can see here this is the byproduct as a Br, and this hydrogen goes on this and even carbon from this too. Okay, so that means we are here we have to understand how to use curve arrow. Okay, so curve arrow is always move from more इलेक्ट्रॉन रीजन या इसे हम न्यूक्लियोफिलिक रीजन कहेंगे या मोर इलेक्ट्रॉन रीजन कहेंगे, तो वहां से ये शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो उस सेंटर की तरफ। तो ये एरो जो है इस तरह से हमें यूज करना है। देन ये जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोफाइल साइट कैन बी न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोफिलिक जो साइट होती है, हमने पहले देखा है इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को जब हमने स्टडी किया था तब हमने वहां पे कहा था कि इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, है ना, वहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करता है, तो इस तरह के स्पेसिस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। हो सकता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करे, क्योंकि उसमें अगर पॉजिटिव सेंटर डेवलप होता है तो, है कि नहीं। तो इस तरह से जो भी स्पीशीज हमें देखने को मिलती है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज। तो देखो क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, जिससे कि हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, ये वाला, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ वाटर है, प्रोटोनेटेड वाटर कहेंगे उनसे। तो इसमें क्या होता है कि देयर इज एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बाइंड विद द ऑक्सीजन, तो valency of oxygen is increased by the 1, so that's why there is a positive charge। तो ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो HO बॉन्ड है ये वीक हो जाता है, या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ये इस ऑक्सीजन के करीब होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इस वजह से ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, इस हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, डेल पॉजिटिव। ओके, और फिर से हमें पता है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्टिंग हो रही है इस तरह से यहाँ पे। ठीक है ना, एनी वन हाइड्रोजन, नॉट नेसेसरी दिस हाइड्रोजन, कोई एक हाइड्रोजन या तीनों में से उस हाइड्रोजन पे ये जो इलेक्ट्रॉन है चले जाएंगे, उस हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किया जाएगा और न्यूट्रल H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। देन ये भी है जिसमें हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, जहाँ पे HBr है। अब ये भले ही हमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिख रहा होगा, बट ये कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है ना, न्यूट्रल है बट पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर क्यों है, तो हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि HBr पोलर क्यों है, क्योंकि हमने 3-4 बार इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। सो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज पोलर इन नेचर। ओके, तो और इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, सो देयर इज अ ब्रोमीन
bromine is more electronegative atom than hydrogen. So because of that, this bromine drift the electron or pull the electron toward itself. Okay, so that's why this bonding electron is appear near to the center of or nuclei of bromine. ठीक है, ब्रोमीन के न्यूक्लियाई के करीब ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से ये दूर रहते हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये वाला ब्रोमीन वाला जो रीजन है, इस रीजन में हमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा देख रहे हैं, तो इसे डेल नेगेटिव चार्ज हम दे देंगे। डेल नेगेटिव क्यों देते हैं? क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल है, बॉन्डिंग प्रेजेंट है, अभी तक बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, और जब भी वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हम वहां पे नेगेटिव चार्ज लिख देंगे, है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये वाला। देखिए ब्रोमीन निगेटिव लिखा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन निगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से ये बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्टली हमने निगेटिव चार्ज लिखा। और वही अगर इस बॉन्डेड मॉलिक्यूल में हमें देखने को मिलता है, तब हम वहां पे डेल जो है, डेल वहां पे हम यूज करते हैं, डेल निगेटिव, मतलब पार्शियली वहां पे सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेल निगेटिव हुआ, और ये जो है दिस इज द डेल पॉजिटिव सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर है, डेल नेगेटिव सेंटर है, तो इस वजह से जो होगा, ये जो पाई बॉन्डेड सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ये पॉजिटिव सेंटर, है ना, इस पॉजिटिव सेंटर को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होने के बाद हमें इस तरह से मॉलिक्यूल दिखेगा, और ये ब्रोमाइड जो है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को जब हम स्टडी करते हैं, तो ये सारी चीजें समझनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये बेसिक होता है ना। हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, हाउ टू यूज एरो। एरो कई सारे स्टूडेंट हमें दिखते हैं कि वो एग्जाम में एरो को गलत तरीके से लिखते हैं, है ना। मतलब एरो जो डायरेक्शन इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव हो जाएंगे, तो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रॉन डेंसर रीजन से या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से नेगेटिव से पॉजिटिव ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमें देखने को वहां पे दिखना चाहिए, और हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो मतलब एरो जो लिखेंगे हम हमेशा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव एरो हमें निकालना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी गलती कर देते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव साइड में इलेक्ट्रॉन कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वहां पे है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वहां पे है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वहां पे है, वो खुद भूखा है, तो दूसरों को खाने के लिए वो नहीं दे सकता, है कि नहीं। तो इस वजह से ये जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो भी होगा फ्रॉम इलेक्ट्रोफाइल टू न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन हमेशा गलत होता है। हमेशा आपने क्या लिखना है इस तरह से, मतलब ये जो एरो हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसर रीजन है, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन पे, क्योंकि ये जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो इस तरह से जो कर्व को हमें उसमें यूटिलाइज करना है कि नहीं। अब इसके बाद जो है यूज एरो टू शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी हम इसको दिखा सकते हैं। देखो अब इसमें क्या है, ये जो है नाइट N2 ग्रुप है, N2 है ना, जिसे हम N2 लिखते हैं, तो एक्चुअली N2 की जो उसका स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो है कार्बन और यहाँ पे है नाइट्रोजन, तो CN बॉन्ड है, और CN बॉन्ड में हम देखते हैं कि ये वाला जो नाइट्रोजन है, ऑलवेज नाइट्रोजन जो होता है इट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कंपेयर टू बी कार्बन। तो इस वजह से ये बॉन्डिंग जो है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, है कि नहीं। और इस शिफ्टिंग की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ से N2 इस तरह से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से बॉन्डिंग है, हेटेरोलिटिक बॉन्डिंग यहाँ पे हम कहेंगे। अब ये OH और ये OH दोनों भी एक जैसी है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो ये होमोलिटिक टाइप की ब्रेकिंग होगी, और वहां पे हमें इस तरह से दो रेडिकल फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग के एग्जाम्पल हुए, है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, इस तरह से। अब इसमें जो है ये वाला एग्जांपल इसमें देखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो है ये इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डोनेट कर देंगे, और यहाँ पे ये CBr बॉन्ड बनते हुए हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो
I'm going to be stop here.